Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. I am your instructor Asma Zahir and I welcome you all in the 10th lecture of the course Introduction to Exceptionalities. The agenda for today's lecture is to discuss the educational considerations for persons, children, or individuals with learning disability. When we talk about educational considerations, it's more necessary to discuss about their information processing cycle, how children with learning disabilities process the information. So for this, I took the model from Kirk and Gallagher's book in Coleman and Anastasio की बुक है ये मैंने आपके साथ गूगल क्लासरूम में शेयर की हुई है वहाँ से ये मैंने मॉडल पिक किया है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आईपीएम. So let's discuss how IPM work for learning disabilities. Before going into the educational considerations for learning disabilities, it's better to discuss the information processing model for learning disabilities. The information processing model is useful in helping us understand the impact that a learning disability can have on a student's ability to take in, think about, and share things that he or she is learning. This model describes learning as a series of components that involve sensory stimulation, input processing thinking, and output, or the sharing of what has been learned. मॉडल जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है एक सीरीज डिस्क्राइब कर रहा है कैसे हम सेंसरी स्टिमुलेशन लेते हैं जो कि हमारा इनपुट होता है प्रोसेस कैसे करते हैं उसको थिंक ओवर कैसे करते हैं और आउटपुट एक ह्यूमन बीइंग कैसे प्रोड्यूस करता है और द शेयरिंग ऑफ व्हाट हैज बीन लर्नड. So here is the picture or depiction of information processing model, that how we take information, how we process it, and how we give output as a result of these information. Like आप अपनी सेंसेस के बारे में जानते हैं, हम जो एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन वसूल करते हैं वो अपनी इन 7 सेंसेस के थ्रू करते हैं. विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, गस्टैरिटी, ऑल्फैक्टरी, प्रोप्रियोसेप्टिव एंड काइनेस्थेटिक सेंस. हम प्रोसेस कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन को, किस फॉर्म में, मेमोरी में. मेमोरी में मेमोरी यहाँ पर सिमेंटिक मेमोरी है, एपिसोडिक मेमोरी है और मोटर मेमोरी है. इनके ज़रिए हम प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को. इंफॉर्मेशन पे हम थिंक ओवर करते हैं. इंफॉर्मेशन को हम कैटेगरीज की फॉर्म में रखते हैं. जैसे आपने अगर एक डॉग देखा है तो आप फ़ौरन आपका माइंड जो है वो उसको रिकॉल कर लेगा कि ये एनिमल की कैटेगरीज में है. एक आपने स्पैरो देखी है तो ये बर्ड की कैटेगरीज में. ठीक है, हम अपनी जो दिमाग में इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं वो कैटेगरीज की फॉर्म में करते हैं. लिंकिंग इंफॉर्मेशन विद प्रायर नॉलेज, और हम अपने पहले सीखे हुए नॉलेज के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को, न्यू लर्नड इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हैं. हम जितना भी हम लर्न करते हैं हम उसे एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और सिंथेसाइज भी करते हैं. और जब इसके प्रोडक्शन की बात आती है कि हम जो लर्न कर चुके हैं या जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम जब इसे प्रोड्यूस करने की, आउटपुट की बात करते हैं तो हम किन फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पर देखें थर्ड कॉलम में स्पीकिंग. इन फॉर्म ऑफ स्पीकिंग वी राइट, वी ड्रा, वी बिल्ड, वी also express by singing, dancing, acting and performing. So these are the ways that we give output. So, as a result of processing or learning, we give output. So, what is the case with learning disabilities, with students or individuals with learning disabilities? How they take input, how they process, and how they produce output. It is very important to know, and all these are called executive functions. Learning and IPM. लर्निंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है.
Overarching each of these components that I have discussed earlier in this picture is the executive function that serves as the system decision maker. In learning, we sometimes call this aspect of the information processing model metacognition. We have added a surrounding emotional context for information processing because this emotional context is a critical mediator in the way students with learning disabilities process information. दिस इज द इमोशनल कॉन्टेक्स्ट कि पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए ये बच्चे जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं. Information processing model shows the components of learning and how they are impacted by a learning disability. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हमें लर्निंग के कंपोनेंट्स बताता है और ये बताता है कि इसको ये किस तरह से जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से. The IPM also gives us a direct insight into strategies we can use to support student learning. और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ही हमें इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाता है कि हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है इन बच्चों के साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे हैं उनके साथ डील करने के लिए. The four major components input, processing, output, and executive functions operate in the context of an emotional environment that influences the processing of information. इंफॉर्मेशन है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है. ये चारों चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं कि इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए काम कर रही हैं. Each component carries out an important function related to learning, and optimum learning takes place when the components function smoothly is one system. एज अ होल ये सिस्टम के तौर पे काम करें तो तमाम लर्निंग जो है वो अच्छे तरीके से टेक प्लेस होती है. और लर्निंग disability can be explained as a glitch in this system. So here are some glitches for students with learning disabilities and what type of problems they face. So first is we will discuss about the input. Here it is. We take input using our seven senses. Okay. Now, what is the case with learning disabilities? They face problems with input processing, or taking input. When the learning disability occurs because of input glitches, a sensory perceptual problem exists. Unlike sensory acuity problems, perceptual problems cannot be corrected with glasses or hearing aids. जो sensory acuity की problems है, जैसे low vision है, सुनाई कम देता है, तो आप हेयरिंग एड्स यूज़ कर लेते हैं. अगर लो विजन है तो हम ग्लासेस यूज़ कर लेते हैं, कोई मैग्नीफायर यूज़ कर लेते हैं. किसी तरह से करेक्शन करने की कोशिश करते हैं जब हमें सेंसरी एक्विटी की प्रॉब्लम्स होती हैं. लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि इनको परसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज हैं, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं. तो परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो करेक्ट नहीं की जा सकती किसी भी ग्लासेस से, किसी हेयरिंग एड से या किसी भी टूल और इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स करेक्ट नहीं की जा सकती क्योंकि ब्रेन की वायरिंग में प्रॉब्लम है. Some individuals with learning disabilities experience sensory integration. कुछ इंडिविजुअल जो हैं इंटीग्रेशन डिफ़िकल्टीज लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि सेंसरी इंटीग्रेशन की डिफ़िकल्टीज को फेस करते हैं. ठीक. अच्छा जी. Sensory integration involves the ability to use two or more senses simultaneously and smoothly. Sensory integration ऐसी ability है जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा senses अपनी स्मूथली और साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं और उस इंसान की आवाज़ भी सुन रहे हैं अगर कोई आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है तो. ठीक. और आप उससे मिलते भी हैं खड़े होकर, आप अपना पोस्चर बैलेंस कायम रखते हैं, काइनेस्थेटिक सेंस भी इन्वॉल्व होती है, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस भी इन्वॉल्व होती है. ठीक है. तो ये सेंसरी इंटीग्रेशन कहलाती है. अब इन बच्चों के साथ सेंसरी इंटीग्रेशन का ही प्रॉब्लम होता है असल में. अच्छा, अब जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि इनको परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जो विजुअल परसेप्शन की प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे होते हैं उनको फिगर ग्राउंड का जो रिलेशनशिप है उससे
फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, क्लोयर को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, और स्पेशल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स ये रखते हैं कि इनको स्पेशल जो इनकी स्किल्स होती हैं इनको फील नहीं होता है. Any one of these problems can make learning very difficult if they are combined with auditory perceptual difficulties. मीन्स आपको विजुअल परसेप्शुअल की डिफ़िकल्टीज तो थी, अगर उनके साथ ऑडिटरी परसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज भी अटैच हो जाएं तो फिगर ग्राउंड के साथ ऑडिटरी प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है. जैसे कि स्पीच समझ नहीं आती है, अगर नॉइज़ में कोई बात कर रहा है तो वो समझ नहीं आ रही है, साउंड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और इस तरह से लर्निंग इनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो चैलेंजिंग बन जाती है. सो a child's or a student's inability to listen and take notes during class is an example of a sensory integration dysfunction. जैसे हमने सेंसरी इंटीग्रेशन को डिस्कस किया, तो ऐसा बच्चा जिसकी सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम जिसे है उसे क्लास में नोट टेकिंग में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके लिए सुनना और उसको फौरन रिएक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है. वो इंफॉर्मेशन को, एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को टेकअप नहीं कर पा रहा. सो बिकॉज दिस टास्क रिक्वायर्स blending auditory perception and tactile or proprioceptive and awareness of where your body is in relation to the space around it actions. proprioceptive एक्शंस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपकी बॉडी जो है वो आपके इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हो. और जैसे कि राइटिंग या नोट टेकिंग ऐसा टास्क है जिसमें आपकी ऑडिटरी परसेप्शन और आपकी टेक्टाइल और प्रोप्रियोसेप्टिव जो सेंस है वो दोनों काम एक साथ करनी चाहिए. इस वजह से सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम होने की वजह से ये लोग नोट टेकिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं. A final area of concern with this component is oversensitivity to sensory input. जहाँ पर सेंसरी इनपुट मिल रहा है वहाँ पर लाइट ज़्यादा है, साउंड ज़्यादा है, स्मेल ज़्यादा है या टेस्ट ज़्यादा है, तो इनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगी वो सिचुएशन. When this heightened sensitivity affects the sense of touch, it is called tactile defensiveness, in which touch can trigger acute discomfort. For individuals who are tactually defensive, a light or soft touch seems to be more uncomfortable than firm contact. It is a typical busy classroom. It is easy to see how a student with these sensory sensitivities would experience difficulties. कि इस तरह के बच्चे किस तरह की डिफ़िकल्टीज को फेस करते हैं, कि उनकी सेंसिटिविटी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. हो सकता है कि वो किसी चीज़ को टच करने से डिस्कम्फर्ट फील करें या किसी चीज़ को स्मेल करने से डिस्कम्फर्ट फील करें. लाइट ज़्यादा हो या लाइट कम हो वो उनको डिस्कम्फर्ट कर सकती है. साउंड, नॉइजी साउंड हो वो इन बच्चों को डिस्कम्फर्ट कर सकती है. सो इनकी इनपुट प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है. हमने पीछे डिस्कस किया कि हम अपनी सेवन सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं इन्वायरमेंट से. तो जब हम सेवन सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन जो सेंसरी इनपुट हमें मिल रहा है, हम एक से ज़्यादा इनपुट ले रहे होते हैं ना एक टाइम में सेंसेस से, अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए. तो जब उसी में प्रॉब्लम है जिससे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन कहा गया है, तो ये बच्चों को इनपुट का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली होता है. जब इनपुट नहीं जाएगा तो प्रोसेस कैसे होगा, या इनपुट जब अधूरा जाएगा दिमाग तक तो प्रोसेस भी कैसे आप समझ सकते हैं कि पूरा होगा, और आप कैसे समझ सकते हैं कि वो बच्चा जो है आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. इनपुट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हमने. जब इनपुट में प्रॉब्लम है, सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, तो प्रोसेसिंग में भी प्रॉब्लम्स आएंगे और अल्टीमेटली आउटपुट प्रोडक्शन होगी ही नहीं. So we have discussed the information processing or input problems. Now we will discuss processing problems, how they process or how they think. Here it is, problem with processing or thinking. When problems with learning primarily affect processing or thinking, we see difficulties with memory and in organizing ideas or thoughts in meaningful ways. जब आप ये कहते हैं कि प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है या थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट आइडिया जो हमारे माइंड में आता है वो मेमोरी का ही आता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई मेमोरी का प्रॉब्लम है.
So, we see difficulties with memory and in organizing ideas or thoughts in meaningful ways. Problems in these areas can be especially frustrating for students and their teachers. मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो मेमोरी के लिहाज से आ रही होती हैं वो टीचर्स के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं। जब हम मेमोरी डिवीजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक सेंसरी मेमोरी है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो कि बच्चों को अपने डिफरेंट टास्क को प्रोसेस करने में हेल्प आउट कर रही होती है। ये तीनों तरह की मेमोरी। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने एक फिगर है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के तहत ही शो कर रहा है कि मेमोरी काम किस तरह से करती है। ये फिगर जो है एटकिंसन श्रिफन मॉडल ऑफ मेमोरी से जो है पिकअप किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो मेमोरी का प्रोसेस है वो क्या है या हमारी मेमोरी काम किस तरह से करती है। Our sensory memory can hold large amount of information for a very short period of time, that is 2 to 3 seconds। ठीक है, हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी जो सेंसरी मेमोरी है वो इंफॉर्मेशन 2 to 3 सेकंड्स तक अपने अंदर होल्ड करती है और उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को अगर अटेंशन मिले तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, अटेंशन ना मिले तो हम उसको भूल जाते हैं, वो फॉरगेटिंग एरिया में चली जाती है। ठीक है, अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को जो आपने रिटेन की है, माहौल से कैच की है, अपने सेंसरी सेंसेस को यूज करते हुए इनपुट लिया है, अगर आप उसे अटेंशन देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। अब इन शॉर्ट टर्म मेमोरी we use short term memory to remember the directions and steps for solving a math problems while simultaneously doing the calculations। हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्यों यूज करते हैं? जब हमें उस इन्वायरमेंट में फिलहाल उस वक्त में रिकॉल करने की ज़रूरत हो। जैसे एक एग्जांपल है कि मैथ प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी उस वक्त काम कर रही होती है। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम 5 to 9 आइटम्स रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो 15 to 18 सेकेंड्स तक होती है, जो उसका टाइम लिमिट है इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रिटेन करने का। अगर वो इंफॉर्मेशन को रिहर्सल कर ले, शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर हम इंफॉर्मेशन को रिहर्सल कर ले तो वो स्टोरेज का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, और जब स्टोरेज का हिस्सा बन जाते हैं तो स्टोरेज तो अनलिमिटेड कैपेसिटी है, लास्ट इनडेफिनेटली। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, हम चीज़ों को काफ़ी देर तक याद रखते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो आपको इन्फॉर्मेशन आई, अगर आपने उससे रिहर्स कर ली तो वो स्टोरेज में जाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन आपकी दोबारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस वक्त आएगी जब आप उसे रिट्रीव करेंगे या याद करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में ही आपने उस इन्फॉर्मेशन को रिहर्स ना किया तो आप उसे भूल जाते हैं। ठीक, मैं एक्सप्लेन दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। हमें सेंसरी इनपुट मिला जो कि हमारी सेंसरी मेमोरी में गया, वहाँ पर वो 1 या 2 सेकंड के लिए इंफॉर्मेशन रहती हैं। अगर आपने उन इंफॉर्मेशन को थोड़ी सी भी अटेंशन देते हैं कि ओ यस ये तो मेरा छोटा बेटा आ रहा है, वाह, तो आपने उसे अटेंशन दी उस बच्चे को या उसके आने को, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये चीज़ चली गई है। ठीक, जब आप उसे रिहर्स करते हैं तो वो स्टोरेज का हिस्सा बन जाती है। जब आपने उसे दोबारा रिकॉल करना है तो वो रिट्रीवल फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इनपुट प्रोसेसिंग में। जब इनपुट ठीक नहीं लिया तो बच्चा अटेंशन कैसे देगा? जब अटेंशन ही नहीं देगा तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का या लॉन्ग टर्म मेमोरी का वो इन्फॉर्मेशन कैसे हिस्सा बनेगी? इस तरह से इन बच्चों को प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। Another way to view memory is to consider how the information is stored। ये देखें, हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पर डिस्कस किया। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर किस तरह से करते हैं, हम एक मेमोरी को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहेंगे। सो वी टिपिकली स्टोर इंफॉर्मेशन इन 3 kinds ऑफ मेमोरी, दैट इज सिमेंटिक, एपिसोडिक एंड फिजिकल मोटर। हम इंफॉर्मेशन को सिमेंटिक मेमोरी में सेव करते हैं, एपिसोडिक मेमोरी में सेव करते हैं और फिजिकल मोटर मेमोरी में सेव करते हैं। सो सिमेंटिक मेमोरी क्या है? सिमेंटिक मेमोरी स्टोर्स कॉन्सेप्ट, वर्ड, symbols and generalization. It is most frequently used form of memory in school। हम अपने कॉन्सेप्ट्स को, वर्ड्स को, सिंबल्स को, शेप्स को, जनरलाइजेशंस को सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर करते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेमोरी है स्कूल पीरियड में। एपिसोडिक मेमोरी क्या है? एपिसोडिक मेमोरी इज आवर एबिलिटी टू रिकॉल होल सीन और एपिसोड फ्रॉम आवर पास्ट। When we experience episodic memory,
we feel we are right back there with all senses engaged. Often, episodic memories are triggered by smells. When you smell lavender perfume like your grandmother wore, you are immediately transported back to the times she read to you while you sat on her lap. Episodic memories are often associated with strong emotions that can be either positive or negative. So, let's come to the third memory, that is motor or physical motor memory. Motor memory is our ability to program our body movements. Our bodies learn pattern and retain them for future use. We learn to ride a bicycle, play a piano, or write our names. Some motor memories seem to last after we no longer use them. Thus, the expression "it's like riding a bike." मोटर मेमोरी में क्या होता है, हम वो चीज़ें प्रैक्टिस से सीख चुके होते हैं, वो हमारी हिस्सा बन चुकी हैं। हमें उनको एफर्ट नहीं करनी पड़ती है उन्हें रिकॉल करने में, उन्हें प्रोसेस करने में, जैसे अपना नाम लिखना, साइकिल चलाना, खाना पीना, ठीक है, हम ये लर्न कर चुके हैं। ये हमारी मोटर मेमोरी का हिस्सा है, तो हमें इसके लिए काम नहीं करना पड़ता। सो अब अगर हम इंडिविजुअल विद लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, when an individual has a learning disability that affects memory in any form, school can be a challenging place for that child. In addition to memory, the processing components include thinking. मेमोरी के साथ साथ प्रोसेसिंग कंपोनेंट जो है वो थिंकिंग भी है. When problems occur in thinking, they are likely to stem from an inability to organize thoughts in meaningful ways. जाहिर है मेमोरी में प्रोसेसिंग ही नहीं हुई है तो इंसान थिंकिंग क्या करेगा. In other words, ideas remain fragmented and disconnected. Sensory information disconnected सा मिला, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिहर्सल नहीं की है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बना है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रेगमेंटेड है, डिस्कनेक्टेड है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है इन्फॉर्मेशन में या कॉन्सेप्ट्स में. Interestingly, when information is stored in memory as isolated bits and pieces, it is more difficult to retrieve and is less useful for thinking. So these were the processing problems, that they can't even process the information. Let's come to the third category, that is problems with output. For some individuals with learning disabilities, the problem is primarily output or the expression of ideas and thoughts, which can take several forms. When output problems affect speech, they may be called developmental aphasia because the symptoms mirror those of a stroke patient with speech difficulties. कि आउटपुट का प्रॉब्लम जब आता है तो हो सकता है उस बच्चे को डेवलपमेंटल अफेजिया हो. डेवलपमेंटल अफेजिया में क्या होता है कि बच्चे को स्पीच डिफिकल्टीज होती हैं. These problems include word retrieval and speech fluency which can make communication very difficult. कि बच्चा जो है वर्ड रिट्रीवल नहीं कर पाता, लफ्ज़ों को याद नहीं कर पाता है और उसकी स्पीच फ्लुएंसी नहीं होती है. इस वजह से उसकी कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है. ये पहली फॉर्म थी जिसको हमने डेवलपमेंटल अफेजिया का नाम दिया. सेकंड फॉर्म आउटपुट ग्लिचेस की क्या हो सकती है कि मोटर मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. The easiest way to understand this is to imagine that the connection between the brain and the hand is not efficient. जाहिर है proprioceptive का प्रॉब्लम है, tactile sense का प्रॉब्लम है कि ब्रेन का रिलेशनशिप नहीं बन रहा. The easiest way, so there is static on the line which makes it difficult for the hand to know what to do for the brain to understand what the hand has done. If you think back to any example. So, difficulties with handwriting are sometimes called dysgraphia. Handwriting की difficulty जो है वो dysgraphia कहलाती है, which literally means bad handwriting. To produce legible products. These students have to draw the letters and forms them into words. This process is very taxing and cannot be sustained for general work when dysgraphia is combined with visual and auditory perceptual problems or sensory integration difficulties. Note taking during lectures and copying from the board are virtually impossible for these students with learning disabilities. So let's come to the another form. Another form of the output is learning disability can take in an inability to both understand and produce gesture or facial expressions.
द फीलिंग्स या इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आउटपुट में हमने डेवलपमेंटल अफेजिया को डिस्कस किया, इनकी हैंड राइटिंग को डिस्कस किया, हैंड राइटिंग के रिजल्ट में इन्हें डिस्ग्राफिया होता है, और डिस्ग्राफिया के बाद हमने इनके इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को, इमोशनल फीलिंग्स को डिस्कस किया कि यहाँ इनके इमोशन जो हैं वो भी इमोशनल डिफिकल्टीज ये फेस करते हैं। सो दिस वर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, कि हमने इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया कि इनको इनपुट लेने में प्रॉब्लम होता है, प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होता है, और आउटपुट के किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम्स विद एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते क्या है? द एग्जीक्यूटिव फंक्शन और मेटाकॉग्निशन इज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ दिस मॉडल। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस या मेटाकॉग्निशन जो है वो इस कंपोनेंट का डिसीजन मेकिंग मॉडल है। डिसीजंस आर मेड अबाउट व्हाट इनपुट टू नोटिस और स्क्रीन आउट। डिसीजन इस हवाले से किए जाते हैं कि कौन सा इनपुट लेना है, कौन सी स्ट्रेटजीज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करनी है, और आउटपुट को किस तरह से प्रोड्यूस करना है या अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किस तरह से करना है। Metacognition also includes self-regulatory skill when monitor ourselves so that we can continuously adapt our thoughts, speech, and actions to accomplish our goals. Self-regulatory skills help us adapt to the environment and they are very essential. Self-regulation implies that an individual is in control or responsible for his or her own actions. In addition to its importance of learning, self-control is also key ingredient in social successes. सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। जो एडीएचडी के साथ बच्चे हैं उनको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, सेल्फ रेगुलेट नहीं ये बच्चे अपने आप को कर पाते हैं। ठीक, तो एक्सपीरियंस दैट इंडिविजुअल्स विद एडीएचडी हैव व्हेन एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन इज इम्पोर्टेंट। जब लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ या एडीएचडी के साथ बच्चे होते हैं, जब इन्हें एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से सेल्फ रेगुलेट करना, या उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से अपने आप को ढालना, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी अकर्स बिकॉज दे आर अनएबल टू स्क्रीन आउट स्टिमुलाई दैट आर इररेलेवेंट टू प्रेजेंट टास्क। मतलब बच्चा अगर लिख रहा है या टीचर को सुनने की कोशिश कर रहा है तो उसे बेल रिंगिंग की आवाज़ आती है, बाहर से कोई और बच्चा गुजरता हुआ दिखाई देता है, कोई बच्चा उसे पेंसिल से लिखता हुआ दिखाई देता है, अपने साथ वाले को वो देख रहा है, तो इन सारी इंफॉर्मेशन से ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इन्हें बहुत लिमिटेड सेंसरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि ये उसको एटलीस्ट प्रोसेस कर सके। जब इनको सेंसरी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो ये ओवरवेल्म हो जाते हैं, इनके लिए वो सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अपने आप को उस टास्क की तरफ जो कि उनके लिए करना ज़रूरी है, जैसे कि टीचर को सुनना या नोट टेकिंग करना। Therefore, all stimuli are given equal weight and information processing system can be overwhelmed with input. So imagine being in a store with 45 televisions tuned to 45 different channels. Trying to watch only one program would be difficult, as all the TVs are producing sound and images that are competing for your attention. This is the experience that individuals with ADHD have when environmental stimulation is abundant. For an individual with ADHD, such conditions can be very overwhelming. This is the world as we know it. So, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट की तरफ अब हम आते हैं। Emotional context is not typically included as part of the information processing model। ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ बच्चों की बात करते हैं तो उनको अपने इमोशनल एक्सप्रेशन देने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो उन बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने बात की कि ये सारा हिस्सा जो है ये इमोशनल कॉन्टेक्स्ट है, ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये जो आपको ओवल शेप नज़र आ रही है ये इन बच्चों का इमोशनल कॉन्टेक्स्ट है, किसी भी इनपुट को रिसीव करने के लिए, उसे प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट देने के लिए, या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, once im- uh, once emotional environment and internal emotional state both have a dramatic impact on one's ability to learn। इन अपना
इमोशनल इन्वायरमेंट बच्चे का कैसा है और उसकी अपनी अंदर की इमोशनल स्टेट कैसी है. When the emotional environment is harsh or we perceived it as dangerous, our internal emotional state become accurately stressed and defensive. ये हम सबके साथ होता है कि जब इमोशनल इन्वायरमेंट जो है हार्ड होगा तो हम खुद से ही स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं और हम परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से. Neither this environment nor the internal state is produced is optimal for learning. Think for a moment of a time when you were trying to learn something new or to perform a task under a great deal of pressure and stress. Perhaps you were taking an exam, or maybe you were learning to drive. Take yourself back to that time and try to remember how you felt at that time. Can you see how strong emotions can affect our ability to learn and to perform with success? In fact, strong negative emotions have an impact on all aspects of our ability to process information, coloring our perceptions, scrambling our thinking, interpreting our ability to communicate, and perhaps most important, clouding our judgment or executive functioning. Individuals with learning disabilities may be even more vulnerable to toxic emotional environments than other students because their internal emotion states are often less secure. बहुत इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं जहाँ पर गुस्से वाला इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पर लेस इमोशनल सपोर्ट होगी उस बच्चे के लिए, वो इन्वायरमेंट उसके लिए टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन जाएगा कि वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा. सो repeated exercises of failure and frustration can lead to anticipatory anxiety in the face of new situation, even when the situation is not particularly stressful. ठीक है कि वो सिचुएशन जो नई सिचुएशन है वो हो सकता है स्ट्रेसफुल ना हो, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट से अपनी एंजाइटी या फेलियर को एक्सपीरियंस कर चुका हुआ है, तो वो उसके लिए एंटिसिपेटरी एंजाइटी बन जाएगी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी डेवलप हो ही नहीं सकेगा उस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए. This anticipatory anxiety can sabotage success by undermining self confidence at the start of a new experience. Anticipatory anxiety can also lead to heightened sensitivity and defensiveness, which further erode an individual's ability to respond to new situations and opportunities. कि वो नई situations या opportunities की तरफ react ही नहीं कर पाता है. Thus far, we have discussed the impact of emotional context on cognition. But the emotional context also affect on social situations. When an individual has a learning disability that affect his or her ability to read and understand social cues, social situation can feel threatening because people are often very unpredictable. So ये बच्चे जो हैं ये उन social situation से भी घबरा जाते हैं क्योंकि ये अंदाज़ा नहीं कर पाते हैं कि दूसरा इंसान इनके लिए क्या फील कर रहा है या इनको किस तरह की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है. सो दिस वाज द टोटल information processing model we have discussed. Now we will discuss information processing model as a system, that how the things we can relate. Although each part of the information processing model has been discussed separately, right? The components work together as a system. Each component influence and is influenced by other in a continuous feedback loop. जैसे कि आप देखें इंफॉर्मेशन का अगर इनपुट ठीक तरह से रिसीव नहीं हुआ तो प्रोसेसिंग नहीं होगी, प्रोसेसिंग नहीं होगी तो आउटपुट की भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये तमाम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, इन तमाम को कंट्रोल कर रहा है इमोशनल कॉन्टेक्स्ट. जैसे हमने इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को जिक्र किया कि इन बच्चों के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं. So, how we can say this is a system? Now we can say this is a system. An anomaly or problem in one area will have an impact on other components automatically. It is automatic. ज़ाहिर है इनपुट नहीं आ रहा है, प्रोसेस नहीं होगा और आउटपुट में प्रॉब्लम होगी. For example, a student with visual processing problems that affect closure with will have a difficult time recognizing the differences between the letter pairs. For example, A and U, N and H, A and D, H and B, A and G, C and O, Q, A and Q, C and D, T and F, I and L, I and G,
ओ एंड पी, आर एन एन एंड वी एंड वाई। जिनको क्लोजर का प्रॉब्लम होगा उन बच्चों के लिए इन लेटर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो यही नहीं, इफ ही और शी, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कि ये लेटर प्रोसेस किस तरह से कर रहे हैं, या उन्होंने इनकी शेप्स को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। If he or she has a problem with visual rotation and mirror images, then the following letter pairs will become difficult, like B and D. उनको पता नहीं चलेगा कहाँ पे B लिखना है कहाँ पे D लिखना है, वो एक ही समझेंगे। Q and P, Q and G, U and N, H and Y, M and W and G and P. With these moderate perceptual difficulties, reading becomes a struggle for individuals with learning disabilities. So, the individual spends the majority of his or her time and energy sorting the letters and decoding the words. वो बच्चा बेचारा तो इसी में लगा रहता है कि उसने लेटर्स को किस तरह से सॉर्ट करना है, वर्ड्स को किस तरह से डिकोड करना है। दिस लीव्स लिटिल रूम फॉर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। और इसके बाद उस बच्चे ने मीनिंग किस तरह से उस वर्ड का पढ़ना है, ये तो उसके लिए जगह ही बहुत थोड़ी सी रह जाती है उसकी मेमोरी में, कि उसने किस तरह से उस वर्ड को पढ़ना है। कैट लिखा हुआ है, वो ए में घूम गया है, वो टी में घूम गया है बच्चा, तो वो किस तरह से समझ पाएगा कि ये कैट है और इसका मतलब बिल्ली है। विच इज़ असेंशियल फॉर मूविंग इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। मीनिंग्स का होना ज़रूरी है, फिर ही इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, जब हम उस चीज़ को मीनिंग्स देते हैं। Remember that when we use the term learning disability, we are referring to a wide range of learning problems that coexist with the variety of learning strengths. Learning strengths भी हैं इन बच्चों की, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि अंडरस्टैंड करना टिपिकली काफ़ी मुश्किल हो जाता है। So therefore, each student with a learning disability will have a unique profile and will need an educational environment that can address these differences. इस वजह से हर बच्चा जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है उसको एक अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, ताकि वो कुछ सीख सके। उसको ऐसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है जो कि उसको ऑटोमेटिकली डिकोडिंग करना सिखाएं, ऑटोमेटिकली उसको समझना सिखाएं इन्वायरमेंटल क्यूज़ को। तभी वो किसी एक एजुकेशनल सेटअप में किसी दूसरे बच्चे के साथ बैठकर पढ़ सकेगा, क्योंकि उसे इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है। हर बच्चे की यूनिक प्रोफाइल है, हर बच्चे की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी की नीड्स हैं वो अलग हैं। ज़ाहिर है हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर बच्चा अपने लिहाज से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, हर बच्चा अपने लिहाज से इंफॉर्मेशन का इनपुट ले रहा है, ठीक है, और हर बच्चा अपने लिहाज से प्रोड्यूस कर रहा है। किसी को इनपुट की कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रोसेस की कोई प्रॉब्लम है, किसी को आउटपुट की कोई प्रॉब्लम है। सो हमने इंफॉर्मेशन की इनपुट की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, आउटपुट की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, और इवन इमोशनल कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया। सो किस तरह से हमने अब इनके लिए एजुकेशन प्लान करनी है जो कि इनके लिए हेल्पफुल हो, कि ये अच्छी तरह से इनपुट रिसीव कर सकें, अच्छी तरह से उसको प्रोसेस कर सकें और आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। और इनपुट और प्रोसेसिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कम से कम ये कोई आउटपुट ज़रूर प्रोड्यूस करें। सो एजुकेशनल कंसिडरेशन जो हैं इस तरह से हमें इन बच्चों के लिए प्लान करने से चाहिए। So this was from my sides of today's lecture. In next lecture, we will discuss the educational considerations for children with learning disabilities. Thank you so much. Allah Hafiz.